I've taken it, even from y'all guys, by the way. तुम लोग को भी मैंने देखा हो. But it's time that you have a piece of this pie. 115 is just like Arsenal's European trophy. It does not exist. Wait next week, no? यहाँ पर मैं बात कर लूँ एम्बापे की, विनिशियस की, मजाक बना के रखा है यार पूरे क्लब का. Pep. वो जा रहा है. उसके बारे में 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनेगी, द मैनेजर हु नोबडी टॉक्ड अबाउट, बट कैजुअल फैंस को कभी नहीं समझ आएगा. Pep का impact at City is better than United का सर एलेक्स का. तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हारी एक्स स्कारलेट जोहानसन से भी बेटर है, बट रिलैक्स भाई. FIFA 12, FIFA 13, Neymar signs, and you're like कि भाई Neymar क्या प्लेयर है भाई. जोसे मूरिन्यो हैं क्योंकि इन प्लेयर्स को ना बेल ट्रीटमेंट की बहुत सख्त जरूरत है. Set piece FC this, set piece FC that. Bruno got 12 assists from set pieces. 12. When you all call us out for that, na, take it also. This is episode 36 of the Rivalry Room. लेकिन before we get into the meat of the conversation, pies, bottles, etc. एक serious conversation करनी है यहाँ पे. हमने यहाँ पे इतने सारे एपिसोड शूट किए, 35 एपिसोड्स, एक कम्युनिटी बिल्ड हुई है फैंस की, क्रिएटर्स की. बहुत सारे रैंडम, नॉनसेंसिकल, अनपॉपुलर ओपिनियंस आपने दिए है कमेंट्स में. यहाँ अपने फैंस ने तो बहुत ही लॉजिकल दिया है. क्रिएटर्स कभी कभी बोल देते हैं. वो ओपिनियंस पे ट्रोलिंग करो, बैंटर करो. बैंटर क्या होता है वो प्लीज़ जानो. पर्सनली उन पे, उनके लुक्स पे, जेंडर पे, खानदान पे मत जाना. आई ट्रस्ट यू गाइज बैक एट होम कि आप वो जानते हो डिफरेंस ट्रोलिंग और बैंटर पे. प्लीज कीप द कम्युनिटी कमेंट्स एज क्लीन एज यू कैन. लाइक आई सेड, दिस इज एपिसोड 36 ऑफ द राइवलरी रूम. हम यहाँ पे लेके आए हैं ब्रायन उर्फ बाबा उर्फ बेबी, जो बहुत ही अच्छे मूड में है. ब्रायन, क्या करना है आपको? I mean, we should. The apple of my eye, the pie, well, what can I say now? Are you ready, Mr. Flacco? So, for months, I had heard. I've taken it, even from y'all guys, by the way. तुम लोग को भी मैंने देखा हो. But it's time that you have a piece of this pie. You know, your player said something very nice, 2 years ago, to my manager. What did he say? Stay humble है. And now what you have to learn about? Stay humble है. So here you go. थोड़ा सा खा लो. फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में तुम ही चोकर हो. सारी उम्र 155 पे जियो. ठीक है भाई साहब. But other than that, I think so. After all the bottles are gone, this is what we need to put over here. It is high time that people realize that there's a cannon here. There will always be a cannon. And well, what can we say? ये जो है ना, ये आप लोग का आंसू है. पूरे साल का आंसू. इतने सालों के लिए आपने बोला क्या? बॉटलर, चोकर, सेकंड प्लेस, नेक्स्ट FC, next season FC, season after season. See, 22 years I waited. रुको, because I'll tell you why, what is going to happen. I'm happy. This bottle goes now. You know what? F the bottle, bhai. I'm genuinely happy. I would say to everybody ki, bhai, it was a good release. I will say this. Manas had lovely said this in one thing. When the release comes, no, it'll be double effect. What Manchester City did, that bottle guy, was premature ejaculation. You build up, na? It's like that girl who's there, with a girl, you find like a 10 on 10 baddie, you are like, she is the one for me. You last for 2 minutes. That is what Manchester City is. You're bolted up so much, but you're released too quick, yaar. Oh, but I forgot, you're Pep Guardiola, na? You'll release the ball that fast anyway. 7-second rule, right? और इतना तुम लोग को हम लोग ने 22 साल पाई खिला कि तुम्हारे पास बेकरी खुल गई है. It's fine, Baba. Our bakery उसी बेकरी से लेकर आके इसको खिलाया अभी. नहीं, it's fine, Baba. Our bakery is a very well run, no drama, no issues, no oil, sorry. 115. 115, no corruption charges. 115 is just like Arsenal's European trophy. It does not exist. Wait next week, no. Wait next week. We have an opportunity. We broke one record after 22 years. We might break another one. And guess what? I believe my team will do it. इतना लेट प्रीमियर लीग जीत रहे that they call it a record. हाय अभी मैं क्या ही बोलूं. रोलो सेकंड प्लेस पे हो ना. चिल मारो. Come हमें on, कितना man. बोला? फर्स्ट प्लेस इज दिस, सेकंड प्लेस इज आर्सेनल. आपने ही बोला था ना. इट वाज योर वर्ड्स ना. फर्स्ट प्लेस व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, सेकंड प्लेस इज आर्सेनल. भाई अभी सेकंड प्लेस आप रख लो. अब क्या बोलूँ, हमेशा बस यही था दिल में कि सब लोग बैठे रहे ऐसा सबके बीच में एज अ चैंपियन मैं बैठूँ.
तो बैठा हो, बड़ा मज़ा आ रहा है और आई एम गोना दिस गोना स्टे विथ मी फॉर एवर बिकॉज 2008 से लेकर अब तक बस आंसू देखे है, परेशानियाँ देखी है, जैसे लोग बोलते हैं बॉटलिंग देखी है, अब नहीं भाई, वी आर ओवर द लाइन, हम लोग जीत गए हैं एंड दिस गोज फॉर ऑल द आर्सेनल फैंस एज वेल जो मुझे सुन रहे हैं अभी, ठीक है, लोगों को बोलने दो, कितना बोलते हैं बोलने दो, यू सेलिब्रेट, रोड पे नंगा नाचना है नंगा नाचो, ठीक है, बियर पी के पूरे जो करना है करो भाई, इट्स योर Rivalry room टाइम, and इट्स Game योर on FC टाइम. does not condone dancing naked on the streets or throwing rocks on people. हाँ ठीक है, जो भी है, बट जो करना है करो भाई, ठीक है, और डोंट लेट एनीवन बिकम अ सेलिब्रेशन पुलिस के बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो भाई. Genuinely tell me, कैसे लग रहा है फाइनली बीइंग अ प्रीमियर लीग चैंपियन? क्योंकि आई नो आप जब भी बहुत बच्चे होंगे तब भी आपने शायद याद भी नहीं किया लास्ट जीता होगा. I was not even born that time. कैसे but लग रहा है? After 22 years, okay, it's been a while since I've been an Arsenal supporter, okay, and my mouth's a bit dry. Can you fill it up for me, please, Flacco, with your tears, please? Yeah, till he gets that done, let me continue. Okay, so yeah, it's quite emotional for me as well. Okay, 22 years is a long stretch, okay, and in the coming week, it's our time to mark ourselves on the European map as well, okay. Hopefully, we get across the line against PSG, okay, shut all the haters. And in the past 5 years, all the bottling we have been hearing, it's time to set ourselves on the European map and bring back the good old days. So yeah, that's about it. Vamos. I would just add one small thing is because it's been 22 years, for people who don't realize, a lot of fans of Arsenal have lost a lot of family members, people who are fans. You saw a lot of the thing which came out in this was a lot of people putting emotional messages कि मैं फुटबॉल मैच मेरे बाप के साथ देखता था, माँ के साथ देखती थी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. यू सी लाइक फॉर उन लोग के लिए कितना मीनिंगफुल होता है. इवन इन आर्सेनल मुंबई देयर आर पीपल हु पास्ड अवे इन द लास्ट फ्यू इयर्स हु मिस्ड आउट ऑन this celebration which will be there, it's a lot more impactful than any fan base would realize because we've been through a lot. मतलब historically when I talk to the older fans, वो लोग बोलते हैं कि we let go of our stadium, we sold players every year, it was like you finish fourth and you sell your team. We accepted कि we were going to be the feeder club. But now that we have reached a point where we are champions, we are happy. But also we are like, it takes a toll. Like genuinely being honest, I didn't cry. It's still not processing it only, bhai. Like till now, genuinely still processing it कि हम लोग जीत गए. I think so. Once जब last game होगा, when I see them lifting the trophy, that time all emotions will come out. And at that point, I'll just be like grateful to God and grateful for everybody. But yeah, being honest, this victory is also for the fans. Genuinely speaking, it feels for the fans who we lost on the way. So yeah, I think so. That is how we would like to make sure that we leave our mark with this championship victory. Emotional, I think fair enough. गुड इमोशनल मैसेज आई थिंक समझ गए यहाँ पे. अगर जो आपने पोस्ट गेम सेलिब्रेशन देखे होंगे तो अपने आप सब फैंस एमिरेट्स के बाहर आ गए, लंदन को टेक ओवर कर दिया. कोई भी लीग जीतती है, बैंटर इज साइड, इट इज़ कंग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल क्योंकि टू गो अप अगेंस्ट पेप गार्डियोला एट अ सर्टेन पॉइंट द ट्रांजिशनिंग टीम ऑफ क्लॉप का लिवरपूल भी नो इजी फीट. Congratulations Arsenal again, definitely deserve it champions no matter what people want to say about it. एक ही चीज़ बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आर्सेनल, यू गाइज डिड इट, फाइनली डिड इट. मैं 3-4 एपिसोड पहले भी बोला था आर्सेनल नीड टू विन दिस, अगर आगे का उनको रेन करना है तो. ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, यू गाइज हैव डन इट, कीप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन, कीप फाइटिंग सिटी. आपने बात छेड़ी है तो आप पे फिर से ही आ जाते हैं. पेप गार्डियोला यू टर्न नहीं करने वाला है, लुक्स लाइक वो जा रहा है. उसकी एक क्लिप आई थी जहाँ पे बेचारा फाइल्स लेके बाहर जा रहा है अकेले, एकदम अकेले. पेप क्या बोलूँ मैं, ही इज़ बेसिकली मेरा 60 से 70% फुटबॉल करियर है सिटी का. वो जा रहा है, बर्नार्डो सिल्वा जा रहा है, जॉन स्टोन्स, इनको ही देखा है मैंने. For a change, it's good to see different kind. क्या कमीने यार. बट आपको डर लग रहा है फ्लैको कि इट कुड बी लाइक अ स्मॉल डिक्लाइन आपके लिए अभी? डिक्लाइन तो ऑब्वियसली पेप से बेटर कोई हो ही नहीं सकता, पेप से बेटर कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए तो. और रही बात मरेस्का की, मरेस्का इज़ लाइक पेप
के साथ रह चुका है, काम कर चुका है, लीग जीत चुका है वो, अंडर प्रीमियर लीग 2 जो बोलते हैं सब उसको, प्रीमियर लीग 2 जीत चुका है वो, ही हैज़ बीन विद द प्लेयर्स, सो आई डोंट थिंक वो उतना डिक्लाइन हो सकता है. बट मरेस्का ऑलरेडी एकदम फ्लो में शुरू हो गया, ऑलरेडी ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू प्लेयर्स, वो प्लेयर्स से इंट्रोडक्शन कर रहा है, बात कर रहा है, स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर दिया है. सो आई डोंट थिंक इतना इम्पैक्ट पड़ेगा. बट पेप इज़ पेप मैन, क्या बोलूँ मैं. पेप और बर्नार्डो सिल्वा, जॉन स्टोन्स, इनकी कमी तो लगेगी भाई. नहीं, इंडीड मैनचेस्टर सिटी आर अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन. यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज है उनके लिए, बिकॉज अगर हम रियलिस्टिकली देख ले, पिछले 10 साल में उनका एक ही मैनेजर रहा है, ठीक है, एंड उस मैनेजर ने डिसाइड करा है कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा प्लेयर जाएगा. तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा लीडर, एक रेवोल्यूशनरी जिस तरीके से हम बोल सकते हैं आपके क्लब के लिए, आप उसे खो रहे हो. बट टू सम एक्सटेंट आई ऑल्सो बिलीव कि फुटबॉल क्लब्स में ना ऐसे चेंजेस चाहिए भी होते हैं एट टाइम्स. तो आई थिंक इट इज़ हैपनिंग एट द राइट मोमेंट. आपका एक ट्रांजिशन शुरू हो चुका है जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स जा रहे हैं. आई थिंक रॉड्री मे और मे नॉट स्टे, उसका भी 50-50 है. ही इज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड. मैं बोल रहा, हाँ बोलो रियल मैड्रिड. हाँ, ही इज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड राइट नाउ, एंड मैं खुद भी स्केप्टिकल हूं वेदर आई वांट हिम और नॉट. ऑन अ टैक्टिकल लेवल येस इट डज मेक सेंस, बट ऑन एन इमोशनल लेवल जो विनी के साथ हुआ और सब कुछ, आई रियली डोंट वांट हिम इन दैट सेंस. बट यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा भी जा रहा है. आई थिंक दैट्स अ प्लेयर मैड्रिड शुड लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज इवन इफ ही इज 33 ही स्टिल इन माई ओपिनियन अ ग्रेट प्लेयर. एक ऐसी प्रोफाइल जो मैड्रिड मिस कर रही है. लेकिन यहाँ पर सिटी में वो ट्रांजिशन नीडेड था. प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स जाएंगे, ये पार्ट एंड पार्सल है. वीव सीन दैट हैपन इन बार्सिलोना, वीव सीन दैट हैपनिंग इन रियल मैड्रिड. बिगर प्लेयर्स हैव लेफ्ट. आप सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे हो कि राइट टाइम पे यूनाइटेड की देखो सक्सेशन प्लानिंग बराबर नहीं रही है, एंड लुक एट व्हाट इट्स कॉस्ट. लुक एट व्हाट्स कॉस्ट देम. तो यहाँ पर मैन सिटी के लिए ऑन द अदर हैंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. स्टोन्स इज आल्सो लीविंग, रूबेन डियाज हैज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट आई थिंक 1-2 साल में वो भी फेज आउट हो जाएगा. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, एंड नाउ इज द टाइम जहाँ पर आर्सेनल एक्चुअल में प्रीमियर लीग डोमिनेट कर सकता है. बिकॉज यहाँ पर कौन ट्रैवल करने के लिए? लिवरपूल इज डाउन, सिटी इज डाउन, यूनाइटेड स्लोली स्टडली राइज अप कर रहा है, बट नोबडी नोज व्हाट्स गोना हैपन विद देम नेक्स्ट सीजन. तो यहाँ पर आर्सेनल का प्रॉपर अब टाइम शुरू हो चुका है, इज व्हाट आई फील. इफ दे ऐड वन मोर गुड अटैकर इनटू देयर मिक्स, आई कैन रियली से कि नेक्स्ट सीजन भी प्रीमियर लीग में दे आर गोना बी ऑन द टॉप. सो यहाँ पर सिटी का तो ट्रांजिशन शुरू हो चुका है. मुझे एक चीज पूछनी है यहाँ पे, पेप जा रहा है, क्या उसने सर एलेक्स फर्गुसन की लेगेसी को सरपास किया है कि नहीं? पहले डेफिनेटली यस. मैं यस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलेक्स फर्ग्यूसन वाज लॉन्गर एट यूनाइटेड, बहुत टाइम के लिए था, और पेप वही हाथ पे was barely 10 years at the club. He has won twice as many trophies. और एलेक्स फर्ग्यूसन के ऑलमोस्ट क्लोज था. वो जो इम्पैक्ट, नो डाउट सर एलेक्स का ऐसा, उनको सर एलेक्स फॉर अ रीज़न ही इज कॉल्ड राइट, वो उसको बुलाते हैं. चेंज्ड यूनाइटेड, पेप चेंज सिटी, बोथ आर एज गुड एज अ मैनेजर दैट कैन बी मेरे लिए तो. बट पेप आई थिंक हैज सरपास्ड सर एलेक्स. पेप ने पूरा फुटबॉल चेंज कर दिया, प्रीमियर लीग चेंज कर दिया. दैट इज पेप फॉर मी, दैट इज पेप फॉर मैन सिटी. And are you saying Pep at Man City is better than Sir Alex, or Pep overall is better than Sir Alex? नहीं, पेप का इम्पैक्ट एट सिटी इज बेटर देन यूनाइटेड का सर एलेक्स का फॉर मी. या आई थिंक यहाँ पे वो मीम इंसर्ट करना पड़ेगा. बोलने दे, तकलीफ हुई है बेचारे को. आई थिंक अभी इमोशनल टाइम है तो थोड़ा कैरी अवे हो रहा है. वैसा है यार कि चलो अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हारी एक्स स्कारलेट जोहानसन से भी बेटर है, बट रिलैक्स भाई, रिलैक्स भाई. वो सर एलेक्स है, वो गॉडफादर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल है. ओवरऑल अगर आप बोलते तो भी शायद कंपैरिजन कुछ कहीं पे बन सकता है, बट जस्ट एट सिटी पिछले हफ्ते में किसी पूछ रहा था क्या लगता है पेप जाने वाला. नहीं, वो रुकेगा अभी क्योंकि उसको सर एलेक्स के लेगेसी के लिए लड़ना होगा. वो भाई वो उसने हथियार डाल के वो चला गया, उसको पता वो नहीं कर पाएगा. हथियार नहीं डाले उसने, डेफिनेटली हथियार नहीं डाले. वो जो उसको अचीव करना था वो 10 साल में कर लिया भाई. और क्या कर सकता था वो, मेरे को बताओ. ट्रेबल जीत गया, फॉर्मिडेबल्स, सेंचुरियंस, ये सब यूनाइटेड ने किया है कभी? सेंचुरी मारी है क्या? 4 पीट किया है क्या कभी? नहीं किया ना. पेप ने करके दिखाया. दैट इज पेप एट सिटी. तुम 70 पॉइंट से जीतो, 100 पॉइंट से जीतो, तुम लीग जीत रहे हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आई एम सेइंग यू आर टॉकिंग अबाउट द लेगेसी ऑफ पेप वर्सेस सर एलेक्स. ही इज नॉट बीटन हिज लेगेसी फॉर श्योर. सर एलेक्स केम इन, ही सेड आई एम गोना डीथ्रोन लिवरपूल, और वो करके गया है वो. तो यहाँ पे आया पेप ने, करेक्ट, वो उसने बहुत कुछ किया है, उसने बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम बनाई, उसने सब कुछ किया है, बट उसने सर एलेक्स को बीट किया. डोंट नो वे. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि सर एलेक्स हैड डिफिकल्ट टीम्स टू बीट. यहाँ पर आप मोरिनियो की चेल्सी की बात कर लो, वेंगर की आर्सेनल की बात कर लो, यू नो लिवरपूल वाज आल्सो देयर इन द कंटेंशन. सो यहाँ पर देयर वर टफर टीम्स. आई फील एट टाइम्स इन प्रीमियर लीग पर्टिकुलरली इन द लास्ट 10 years इफ यू लुक एट इट, सिटी को एज सच कोई राइवल करने के लिए नहीं था एक्सेप्ट क्लॉप एट लिवरपूल, बिकॉज यूनाइटेड, चेल्सी, इन सबका डाउन चल रहा था. तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर एलेक्स हैज डन मोर फॉर यूनाइटेड देन
नहीं यार, वो वेदांत, मेरे को पता है क्या लगता है कि वो वी फील दैट कंपटीशन नहीं था, बट कंपटीशन वाज ऑलवेज देयर। आप देख लो लास्ट ईयर आर्सेनल ने फुल कम्पीट किया, बट इट वाज दैट मैच डे या 2 साल पहले वेयर दे लॉस्ट, वरना आर्सेनल थी टॉप पे एंड देन सिटी केम बैक। क्लॉप के साथ इतनी क्लोज बैटल मैंने नहीं देखी है। इट इज़ द रिस्पेक्ट दैट वी हैव फॉर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, वो अभी पेप को नहीं दे रहे, बट आज से 10-15 साल बाद ना वी विल रियलाइज कि पेप क्या करके गया है। मतलब आई एम अ बार्सिलोना फैन, आई हैव नो राइट टू डिफेंड सर एलेक्स, बट जब मैं छोटा था ना, जब मैं बहुत छोटा था तो होता क्या था, एवरीबडी अराउंड मी वाज अ यूनाइटेड फैन, एंड वो अब मेरे को लगता है कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद जब डाउनफॉल आया ना, तो वो जो अचीव किया है इज 10 टाइम्स मोर बिगर एंड वो ज़्यादा फील होता है। जेन्युइनली मैं बोलने वाला हूँ, दिस माइट बी अ वेरी हॉट टेक, पर मुझे जेन्युइनली लगता है उन लोग पार पे है, फॉर द सोल रीजन कि पेप हैज डन सर्टेन थिंग विच सर एलेक्स हैजंट। नॉट सेइंग कि एनीबडी इज बेटर देन द अदर और दिस गाय इज हियर, दिस गाय इज हियर, बोथ आर ग्रेट्स। When we look at फुटबॉल में everybody will acknowledge this कि at the end of the day modern फुटबॉल जो है वो पेप गार्डियोला से चालू है। We should just accept that what he's done at City is remarkable. 97, 98, Liverpool fans will only tell you कि that rivalry, though as a neutral watching those games, वो सिनेमा भाई। ब्रायन, इंटरजेक्ट करने के लिए आपने देखी होगी वेंगर और एलेक्स फर्ग्यूसन की ऐसे कंपटीशन, इनविंसिबल से आगे पीछे, वो भी तो तभी की कंपटीशन अलग ही थी। दैट वाज द फॉर्मिडेबल आर्सेनल इनविंसिबल्स कंपेयर्ड टू क्लॉप 1 point. नहीं, I would say the Klopp era would have been much more closer, genuinely much more closer. वो पता है थोड़ा रीसेंसी बायस भी होता है। वो वही could be, but yeah. एक चीज़ जो डिफर करता है बिटवीन सर एलेक्स एंड पेप इन जनरल, नॉट ओनली यूनाइटेड बट अराउंड फुटबॉल, स्टिल द लास्ट स्कॉटिश टीम टू नॉट रेंजर्स और सेल्टिक जिन्होंने लीग जीता वो सर एलेक्स एबरडीन, और रियल मैड्रिड का लास्ट यूरोपियन फाइनल डिफीट वाज सर एलेक्स एबरडीन। एंड नाउ यू कैन सी, अभी देख सकते हो कि कैसे हर एक टीम, सर एलेक्स ने यूनाइटेड को टेक ओवर किया व्हेन दे वर लिटरली मिड टेबल रेलिगेशन टीम। ही मेड देम प्रीमियर लीग अ डोमिनेंट एरा, एंड वो जो लास्ट प्रीमियर लीग टाइटल जीते, यू कैन सी वो टीम was no better than a 6-7 place finish team. उनको उन्होंने अपने लास्ट सीजन में प्रीमियर लीग जिताया थैंक्स टू रॉबिन वैन पर्सी, जो भी बोलो। So I think that's the difference between Pep and Sir Alex. इनका राइवलरी इस पे कंपेयर करना चाहिए कि उन्होंने अपने अराउंड कितना इम्पैक्ट लाया है इन जनरल लीग पे एंड ओवरऑल। मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि जो सर एलेक्स का बोलते हैं ना कि पैसे उनके पास नहीं थे एज कम्पेयर टू गार्डियोला, तो पूरा गलत पॉइंट है। बिकॉज तभी का अगर ट्रांसफर वैल्यूज देखो ना, उस हिसाब से जो रियो फर्डिनेंड को लाया उन्होंने, या फिर रॉय कीन को लाया, फिर ब्रायन रॉबसन को भी लाया। इनफैक्ट फर्ग्यूसन ने ये बोला है कि आई वॉज गोइंग टू ब्रेक द बैंक फॉर पॉल गैस्कॉइन इन 95, क्योंकि वो इतना भारी प्लेयर था, लेकिन वो बोर्ड ने मुझे ना बोला। तो पैसे का पावर नहीं था, ये तो पूरा अनवैलिड पॉइंट है। वो बस ऐसे लगता है कि मार्केट इन्फ्लेटेड है, लगता है कि सिटी बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। But then City spent like what 400 million तो or वही something बोल in रहा हूँ, मार्केट इन्फ्लेटेड। उस टाइम का 3 मिलियन का ट्रांसफर, आज का 200 मिलियन का ट्रांसफर है। ये आप लोग कंटेंट्स पे ले ही नहीं रहे हो। See, और पेप का इम्पैक्ट ज्यादा है। सुनो तो पॉइंट, पेप का इम्पैक्ट ज्यादा है मॉडर्न फुटबॉलर, जैसे ब्रायन ने बोला। उसका रीजन क्या है? सर एलेक्स ने जब भी डोमिनेशन अपना चालू किया ना, द अदर 19 टीम्स डिडंट ट्राई टू कॉपी मैनचेस्टर यूनाइटेड्स मॉडल, बट सिटी का मॉडल ऑलमोस्ट हर प्रीमियर लीग टीम करने का ट्राई कर रही है। दैट शोज यू कि उसका फुटबॉल कितना ड्रिवन है इन द लीग, और वो कल्चरली उसने कितना डिफरेंट इम्पैक्ट लाया। Doesn't that show that Sir Alex cannot be recreated? He was that special. ही वॉज नॉट दैट स्पेशल। उन्होंने उतना मॉडल स्पेशल नहीं समझा अपने टीम में रिक्रिएट करने के लिए। और बिकॉज आई एम ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ बोथ द टीम्स डोमिनेशन, सो आई कैन टॉक एज अ न्यूट्रल बेटर ऑन बोथ द एंड्स, ऐसा मुझे लगता है। और मतलब सिटी में जब गार्डियोला था ना, उसने लिवरपूल से इतना रुलाया, आई डोंट थिंक एलेक्स फर्ग्यूसन ने उतना रुलाया है, भले ट्रॉफी काउंट में आगे चला गया होगा। इसका पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं कि जो हम प्लेयर खरीदते ना, दूसरे एंड से हम उतने जाने भी देते हैं। हमारा पूरा ट्रेबल सीजन छोड़ दिया हम लोग ने, गुंडोगन जाने दिया, एडरसन जाने दिया, हम लोग ने केडीबी जाने दिया, और क्या चाहिए तुमको? एके जा रहा है ये सीजन, अकांजी को भेज दिया, काइल वॉकर को भेज दिया, और क्या चाहिए? ट्रेबल सीजन की ट्रॉफी भेज दी। अगर इमेजिन कोई दूसरी टीम हो जो पिछले 2 साल में ट्रेबल जीती हो, वो अपनी टीम छोड़ेगी क्या 2 साल के बाद इतना जल्दी? नहीं छोड़ेगी, आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी। बट सिटी ने छोड़ा क्योंकि दे वांट टू इम्प्रूव मोर। पेप को इम्प्रूव करना था,
तो वो चेंज करने के लिए लाया. द मेन थिंग हियर इज यार, उसकी पॉइंट एक्सेप्ट कर लो कि मॉडर्न डे में ये बोलना कि अच्छा उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए इज़ नॉट फेयर. जिसके पास है वो करेगा, बट सिटी फैन सेइंग कि नहीं हम जितना करते हैं सब लोग उतना ही करते हैं इज़ अ बिट टू मच. एटलीस्ट एक्सेप्टेड कि ठीक है इट वर्क्स फॉर यू, यू डू इट, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हो. बट ये बोलना कि आप करते ही नहीं हो, बाकी टीम भी सेम करती है, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया यार. आई थिंक ये एंडलेस डिबेट है. यहाँ पे बहुत सारा डिस्कस करने के लिए बाकी है. कमेंट सेक्शन में बता दो. बात हुई थी पेप गार्डियोला और एलेक्स फर्ग्यूसन की, सर एलेक्स फर्ग्यूसन की लेगेसी के बारे में. क्या सर एलेक्स फर्ग्यूसन की लेगेसी जो है हैज पेप सर, पास इट और नो इन द कमेंट सेक्शन. अभी आप लड़ो बैंटर, प्लीज वापस डेफिनेशन देख लेना एक बार. ओके हमने भसड़ किया है ये, तो विल नाउ आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड. डेक्लन राइस वर्सेस ब्रूनो फर्नांडिस, पीएफए, हु शुड गेट इट? I'll just leave it at this, bhai. How many open play assists does Bruno Fernandes have? I'll just leave it at that. ये कैसा weird condition आ नहीं, because it's no wait. I'll tell you. how many open play chances created just Declan Rice? I mean, नहीं, this is wait, such a wait. random argument. नहीं, मैं बोल रहा हूँ. You used to call a set piece FC ना. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. इस चीज पे तो आप आई विल समझो, सपोर्ट मेरे भाई को. Your counter was तुम लोग हमको ये बोलते थे कि set piece FC. मैंने तो बोला ही नहीं कभी. Highest assist is from goddamn set pieces. भाई क्या बोल रहे हो? आ रहे हो ना, आओ ना. सेट पीस गोल से प्रॉब्लम नहीं था, सेट पीस में गोलकीपर करने से प्रॉब्लम था. मेरे लिए तो पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों भी नहीं है. आई विल गिव इट टू इगोर थियागो. मैन व्हाट अ प्लेयर. गोल स्कोरर हालैंड को हेड टू हेड दे सकता था जो गोल स्कोरिंग में, दैट इज इगोर थियागो. और इतनी छोटी टीम के लिए, ब्रेंटफोर्ड के लिए अनमैच्ड है भाई वो. ब्रूनो ऑल गुड, राइस ऑल गुड बैक पासेस में, बट ब्रेंटफोर्ड इगोर थियागो मैन what a striker. I love that. और उसको कॉल अप भी मिला, deserved call up. Yeah. Very good. I think he deserves the PFA. Okay, so I believe Rice should be the PFA because playing one game every month, okay, doesn't make sense, okay? And talking about set pieces and all, that's part of the game, okay? If you score by set pieces or not, that's part of the game, okay? You play a game, you score goals, as long as you get over the line, it's okay. But playing one game every month, and that doesn't show consistency from Bruno as well, okay? I believe Rice should get it, okay? He's got Arsenal to the UCL finals. He's got Arsenal over the PL line. We even challenged City in the Carabao Cup, okay? And we just dropped against Southampton. But yeah, I guess Rice got us to 3 finals. We have 1 left. So I guess Rice should get the PFA award of the season. यार वन थिंग आई लाइक टू से कि उस आर्सेनल वाले ने सेट पीस चालू किया. आर्सेनल वाला ही सेट पीस का, हम यूनाइटेड वाले तो सेट पीस कुछ लाए नहीं इसमें. नहीं, because I have to tell you a stat ना. अपने आप में खत्म कर लो. अभी भी Bruno जीत गए लीग, अभी भी सेट पीस से ऑब्सेस्ड हो तुम लोग. जाने दो. No. You don't realize I'm giving it back to you for your entire season. You all have been saying the entire season, set piece FC this, set piece FC that. Bruno got 12 assists from set pieces. 12. When you all call us out for that, na, take it also. Accept कि your best player got it from goddamn set pieces. Should I call you a set piece FC team now? Huh? Oh wait, y'all are third. Okay, it's fine. It doesn't matter. Congratulations that y'all finished third. हम बहुत ही एक और एक डिबेट लंबा खींच रहे हैं यहाँ पे. ये सेटल होगा कमेंट सेक्शन में. लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट. भाई ये मैनेजर राउंड रॉबिन शुरू हुआ है. पेप गार्डियोला निकल रहा है. जावी अलोंसो को मैड्रिड ने निकाला. स्टार्टिंग विथ द चेल्सी ब्रदर्स राइट देयर. जावी अलोंसो सेम मिस्टेक जो इतना हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर को लेके आए. प्रोजेक्ट में तो खुद में विश्वास नहीं है ओनर्स को, बट प्रोजेक्ट मैनेजर को लेके आए फिर से. I think it's been more than 4 seasons the blue co ownership has come into place and Potter का Thomas Tuchel का appointment हुआ. उसके बाद Thomas Tuchel को sack कर दिया गया and then Potter came in. A lot of things happened. Pochettino, Maresca won us the Club World Cup. A lot of things happened in the background. There were things that he was discussing with Man City. He wanted to be the next manager of City. तो ये सब चीज़ें हुई. फैंस ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया एंड देन लियम रोजिनियर की सैकिंग, लियम रोजिनियर का अपॉइंटमेंट से एक चीज़ पता चल गया कि दिस सिस्टम, दिस सेटअप इज़ नॉट गोइंग टू डेफिनेटली वर्क फॉर अस. एंड देन शैबी अलोंसो वाज अवेलेबल. लिवरपूल भी था. लिवरपूल फैंस they were very much keen on having Xabi Alonso. He's been the legend so far and everyone thought it's going to be Liverpool. Then out of nowhere, it's a FA Cup final. We lose 1-0 to Man City. It was a decent performance, I would say. But पहली बार ऐसे एक फाइनल हारने के बाद कोई एक फैन बेस खुश हुआ है just because of that appointment of Xabi Alonso. I know it happened in the background, but for me, this is probably one of the best appointments I have seen, probably after Tuchel and Jose Mourinho's second stint. And I think it's start of a new era at Chelsea for us. राहुल, चेल्सी की ये आदत रही है इब्राहिमोविच ईरा से. जब भी लग रहा है ना कि डाउन एंड आउट है, फाइनली एक डिक्लाइन आ रहा है,
6 महीने मरीनो को सेकंड टाइम जैसे सैक कर दिया था, वो एकदम ही अनोइंग हैबिट है उनका टू लाइक रब इट इन द राइवल्स फेस कि लग रहा है अभी तो लग रहा है फाइनली 200 मिलियन लॉसेस, मैनेजर को सैक कर दिया, नो स्टाइल ऑफ प्ले, स्ट्रॉसबर्ग से लेके आए उसको भी सैक कर दिया, और अभी सडनली रैबिट आउट ऑफ द हैट जाबी अलोंसो इज हियर। या तो ये क्या था, अभी ब्लू को भी काफ़ी प्रेशर था टू वैट। उन्होंने 4 साल देखा, उनका जो मॉडल था दैट वाज़न्ट वर्किंग आउट। फैंस ने प्रेशर डाला, सब जगह से एक्सपेक्टेशंस थे, तो उनको कुछ तो चेंज करना था। सो इन दिस मोमेंट उन्होंने जाबी अलोंसो लाया, विच आई बिलीव कि सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था एट दैट मोमेंट। एंड अभी वही मॉडल इनको, क्योंकि कमबैक आपने बोला वो रोमन अब्रामोविच के एरा में जो करते रहे चेल्सी आउट ऑफ नोवेयर, तभी चेल्सी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, हाई क्वालिटी प्लेयर्स थे, जो अभी नहीं है ये लेवल पे। तो दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आई वुड से ह्यूज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। या तो जैसा अभी बोल रहे कि जाबी अलोंसो हैज अराइव्ड एज अ मैनेजर, नॉट एज अ हेड कोच। तो अगर बाय दैट मीन्स उसको ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, ही विल हैव मोर से इन द क्लब्स, लाइक अप्रोच जो भी बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, ट्रांसफर स्ट्रैटेजी, वो सब में। अगर वो बैक हुआ इन द ट्रांसफर विंडो, this summer transfer window will say a lot about what will happen with Chelsea, how will Chelsea go about in the future. ये विंडो हमारा अच्छा रहा, आई बिलीव देन वी विल बाउंस बैक। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये विंडो अच्छा रहेगा, वी कैन कम्पीट फॉर द टाइटल नेक्स्ट सीजन। गिवन द फैक्ट कैन यू कम्पीट इन द विंडो, क्योंकि लॉसेस के हिसाब से आप बड़ी साइनिंग नहीं कर सकते अनलेस आप इतना ऑफसेट करते हो। आई बिलीव अभी ये लोग के ऊपर ही डिपेंड करता है कैसे फाइनेंसेस कैसे चलते हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, हमें इतना मैटर नहीं करता। इज इट वन सेल वन इन वैसा वाला स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो हॉनेस्टली। इफ़ यू हैव टू जनरेट रेवेन्यू तुम करो, मुझे नहीं पता। बट आई बिलीव इफ़ दे एक्चुअली वांटेड टू स्पेंड मनी, जो वो लोग करने ही वाले हैं, मुझे लगता है 150-200 मिलियन स्पेंड करने ही वाले हैं। अब वो कैसे वे में करे वो उन पर डिपेंड करता है। इफ़ दे डू इट द राइट वे, आई थिंक विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन स्टार्टिंग ऑगस्ट। जैसा कि आपने बोला कि ब्लू को आके 4 साल हो गए हैं एंड यहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है इन दिस करंट टीम जो चेल्सी के पास है। सो ऐसा नहीं होने वाला मैजिकली कि जाबी अलोंसो आएगा आपके क्लब में एंड एक विंडो में सब कुछ फिक्स कर देगा। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस एंड ही इज़ अ मैनेजर जो कि प्रोजेक्ट प्रॉपरली बिल्ड करता है। यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी है कि 4-5 प्लेयर्स अनटचेबल हैं एट चेल्सी, मोइसेस काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, कोल पाल्मर एंड आई थिंक वन डिफेंडर दैट यू विल हैव एंड रीस जेम्स। ये 4-5 प्लेयर्स अनटचेबल हैं, उसके अलावा कोई भी सेल ऑफ हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछना फॉर साहिल भाई, कैसा लग रहा है कि जिस लड़की के साथ आप फ्लर्ट कर सकते थे, जो आपके पास आ सकती थी, जो आपकी होनी चाहिए थी, वो आपका नेबर लेके चला गया? नहीं, टॉक्सिक बीवी को छोड़ नहीं पा रहे, वही बात चल रही है। तो ठीक है अभी। नहीं बट मतलब FSG रहा है ऐसे, दे stick to what their decision is, मतलब द मैनेजमेंट इज सो stubborn on what they do। तो स्लॉट के साथ सिक इन किया है, मतलब पता नहीं, हम फैंस को तो नहीं चाहिए वो, प्लेयर्स को भी नहीं चाहिए वो, तो मैनेजमेंट इतना मतलब कैसा बेंट ऑन है उस पर कि उसने नूड्स निकाले हैं या फिर ऐसा कुछ, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड सीरियसली। मतलब कि उसको कमिंग ना नेक्स्ट सीजन भी जो कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला कि आई एम गोना स्टे एंड ऑल, उसको खुद को भी कैसा पता नहीं अजीब नहीं लग रहा कि नो वन इज स्टैंडिंग फॉर यू, यू शुड एक्चुअली लीव फ्रॉम द बैक डोर सिंपली। पर वो नहीं होने वाला है और आई थिंक वी हैव मिस्ड ऑन अ ट्रेन। पर यू मिस्ड आउट ऑन गेही बिकॉज़ स्लॉट इज स्टेइंग। गेही एग्जैक्टली, मतलब सीजन खत्म हो गया आपका गेही के चक्कर में बेचारा। हाँ, मैं तो बोल रहा था लो राइवल रूम देखते नहीं लिवरपूल वाले, मेरा गलती नहीं है। Okay, Javi Alonso out of the way. Jose Mourinho back at Real Madrid, क्योंकि somewhere somehow पापा पेरेस को लगा कि एक्चुअली ना रियल मैड्रिड में प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं चलता है। वाओ, पूरा 1 साल लगा वहाँ पे। वेदांत, स्टार्ट विथ यू। फील गुड फैक्टर अच्छा लग रहा है या डर लग रहा है कि एक्चुअली ये बहुत खराब हो सकता है बहुत जल्दी? सी देखो, देयर आर 2 वेज ऑफ थिंकिंग दिस। पहला तो ये है कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम नहीं करते, ये अब तक हिस्टोरिकली ट्रू रहा है। हालांकि देयर वर अ लॉट ऑफ होप्स, बिलीव्स कि जाबी अलोंसो वुड बी द गाय टू चेंज दैट फॉर अस। यहाँ पर अगर मैं मूरिन्यो की बात करूँ, आई थिंक ही इज द राइट गाय फॉर द जॉब। टैक्टिकली मुझे नहीं लगता मैड्रिड को बहुत ट्वीक करने की जरूरत है। येस, वी नीड सर्टेन प्लेयर्स इन सर्टेन पोजीशंस, वहाँ पर हमारे पास डेप्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ कि क्या हुआ इन द लास्ट 2-3 वीक्स एट रियल मैड्रिड, उसको डील करने के लिए परफेक्ट बंदा जोसे मूरिन्यो है, क्योंकि इन प्लेयर्स को ना बेल्ट ट्रीटमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। बेल्ट ट्रीटमेंट भी छोड़ो भाई, मैं तो बोलूंगा रॉड ट्रीटमेंट की जरूरत है भाई, ठीक है ना।
चाहे मैं बात कर लूँ चुआमेनी की, चाहे मैं बात कर लूँ वेलवर्डे की, he doesn't deserve to be the captain in my opinion. He's a team player, he's a great player, but he does not deserve to be the captain. यहाँ पर मैं बात कर लूँ एम्बापे की, विनिशियस की, मजाक बना के रखा है यार पूरे क्लब का. I have never seen this in the last 13 years. This happened to Real Madrid. तो यहाँ पर हदें पार हो गई हैं एंड अब मोरिनियो आ गया है. यहाँ पर मोरिनियो ने पूरा कंट्रोल ले लिया है ड्रेसिंग रूम का, ठीक है, लॉकर रूम का. वो लेना चाहिए था किसी भी मैनेजर को. विन्नी और आपने ये बात छेड़ी है, उसके पहले एक विल टेक अ स्टेप बैक. बिकॉज मरीनियो जब ही लास्ट टाइम आया था, जैसे मैंने निखिल को पूछा, उसने लफड़ा किया था पेप के साथ पूरा मीडिया में. डू यू फील ही इज गोइंग टू गेट फ्लिक सैक्ड इफ ही सडनली टेक्स ओवर एंड डिस्ट्रॉयज बारसा, और वाइस वर्सा फ्लिक उसको इतना चुप करा देगा कि मरीनियो की ये दी एंड हो जाएगी मैनेजरल करियर की? यार मैं पता है सैक वैक और या एक दूसरे का करियर खत्म कर देंगे इसलिए नहीं जान चाहता. आई नो बारसा फैंस आर वेरी कॉन्फिडेंट हियर और उनको लग रहा है, बट यू स्टार्ट लूजिंग योर एज जब आप ना दूसरे बंदे को बिल्कुल हल्के में ले लेते हो कि यार ये नहीं हो पाएगा. तो हम फैंस ले ले, कोई बात नहीं. जर्मन हांसी फ्लिक को नहीं लेना चाहिए बिकॉज दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक. कि अगर आप, हाँ हमने तो 3 मैनेजर सैक करवाए हैं, 4th इन द रो. बिगेस्ट मिस्टेक दैट बार्सिलोना टीम एंड द मैनेजर कैन मेक राइट नाउ. फ्लिक 2028 तक है. आई डोंट थिंक सो सैक होगा. एवरीबडी लव्स हिम. अगर कुछ नहीं भी ज़्यादा हो पाता, लेट्स से ही विल स्टे. मरीनियो का फ्यूचर, मरीनियो का इम्पैक्ट रियल मैड्रिड में वर्ल्ड कप के बाद क्या लग रहा है आप लोगों को? थुक पट्टी का, हमें पेरेस का एक्चुअल विजन है यहाँ पे एड्रेसिंग कंप्लीटली द इशू जो ड्रेसिंग रूम में है, compete करते हैं बारसा के साथ जहाँ पे फील गुड फैक्टर हांजी फ्लिक है वर्सेस एन ईगोइस्टिकल ईगोमेनियक लाइक होजे मरीनो जो रिजल्ट्स लेके आता है. कमेंट सेक्शन लेट अस नो. अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी, वेरी क्लोज टू 12,000 सब्स. एंड ऑफ कोर्स हाइप कर दो वीडियो को. हाइप एक फीचर होता है यहाँ पे. हमारे लास्ट राइवलरी रूम के आई थिंक 10 एपिसोड में से 5 पहुंचे हैं वहाँ पे. हेल्प अस रीच दैट सेम माइलस्टोन अगेन. एक और नया अपॉइंटमेंट है, या नॉट नया अपॉइंटमेंट, कंटिन्यूएशन. या ओले 2.0 है, या फाइनल रीजन ऑफ द लास्ट रीजन ऑफ द न्यू प्रॉमिस रीजन. क्या लग रहा है? माइकल कैरिक एट द व्हील या अनदर टैक्टिकल डिजास्टर क्लास बाय इनियोस? एक तो जैसे बहुत बार लोगों ने मेंशन कर दिया है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक कि ये नहीं है तो और कौन है. हाँ, और ऑप्शंस है, बट देयर इज नो ऑब्वियस सोल्यूशन टू दिस. कैरिक हैज़ कम इन, ही हैज़ डन फिनोमिनली वेल. यार जब वो पहले 1-2 मैच भी जीते तो मजाक में मैंने पोस्ट कर दिया वो चैंपियंस लीग पॉसिबल, बट 3rd प्लेस इतनी आराम से जीत जाना इवन एज इंटरिम इज़ नॉट ईजी. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली एवरीथिंग दैट गोज़ अराउंड द क्लब एज वेल. अभी चेल्सी जब ज़ाबी अलोंसो के बारे में बात करते मैं भी वही सोच रहा था कि यार सिर्फ वो मैनेजर खुद से कुछ ठीक नहीं कर पाएगा. इतने साल से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी बिहाइंड द सीन्स ऑफ इन्फ्लेटेड वेजेस, किसी को भी साइन कर लिया, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से आई थिंक वो धीरे धीरे भी ठीक हो रहे हैं. इफ यू सी वी गेटिंग रिड ऑफ द रॉन्ग प्लेयर्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे रहे. आई थिंक ऑल ऑफ दैट टुगेदर विथ कैरिक इज द सोल्यूशन. आर्सेनल, राइट, आई मीन हर्ट्स टू से जीते हैं फाइनली. इतने साल मजाक उड़ा. आई डोंट थिंक इफ आर्टेटा वुड हैव बीन देयर 6 years विदाउट अ सीजन एट यूनाइटेड हम रखते, बट they've still gone ahead and won it because the entire board and him believed in a certain way forward, and I think that is more important here. Not कि Carrick है या Iralo है या कौन है, but सब लोग साथ में काम करें towards that goal with a unified vision. I think वो important है. But overall I'm happy Carrick's here. Carrick can do it or not do it? Yes, no, and why yes or why no? I feel maybe. Basically, people are looking at it in 2 ways. First, some people are looking at it as Ole 2.0. Same, Ole took over Mourinho. As interim, he made us finish 3rd place. We were playing beautiful football. And we were decent with him for a few seasons. And then it went downhill in his final season. I feel he was sacked a little too early. But Carrick, dressing room support. He has the dressing room support. Everyone's enjoying their football. So I think they've given him perfect 2-year contract. And if it works out, they can extend it. Otherwise, they cannot continue. I also want to say like अभी यार अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है. पेप भी जा रहा है, यू नो वेकेंसी है. आई डोंट नो आर्टेटा ने इतना स्क्वीज कर लिया है आर्सेनल टीम से, वो डिफेंड कैसे करेंगे, क्या करेंगे. अभी लीग बहुत ओपन है एंड आई वुड लव टू सी यूनाइटेड एंड आर्सेनल राइवलरीज कम बैक अगेन. कैरिक वर्सेस आर्टेटा, दोज मिडफील्ड बैटल्स फ्रॉम बैक इन द डे बीइंग रीलिव्ड इन द मैनेजरियल डगआउट. बहुत मजा आएगा. डिल्यूजन इन चेक. क्या यूनाइटेड कहाँ पे फिनिश कर पाएगी नेक्स्ट सीजन, वो भी डाल दो. डू यू थिंक दे विल हैव अ टॉटनहम डिजास्टर क्लास, या थोड़ा जैसे यहाँ पे यूनाइटेड फैंस ने बोला कि ओपन है नेक्स्ट सीजन? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. इमोशनल बात थोड़ी करनी है यहाँ पे. हमने वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट्स देखे हैं एंड हमने सबने देखा नेमार. हम तो यहाँ बात भी नहीं करें कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीते.
just a chance to play for Brazil in those colors at the World Cup, it meant so much to him. But now if you look at this stage right now, Messi, Ronaldo and Neymar will never don their international kits again. सबसे अच्छी चीज़ मेरे को पता है क्या लगी थी, इररेस्पेक्टिव रियल मैड्रिड फैन, बार्सा फैन, यूनाइटेड फैन, एवरीबडी वाज हैप्पी दैट नेमार को वर्ल्ड कप में ले लिया, बिकॉज सबको चाहे राइवल थे देखना था नेमार का फॉर द वन लास्ट टाइम। वो मेरे को देख के ना बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब वो खेलता था ना उसको बहुत ज़्यादा हेट मिलती थी कि शो बोटिंग करता है, ये है वो है, बट जस्ट फॉर दैट वन लास्ट डांस वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, हैप्पी टू सी दैट। बट विल ही बी एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल, आई एम नॉट श्योर। बट ब्राज़ील की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ना वो वैसा वाइब वापस आ जाती है, दैट जोगा बोनीतो, तो वो देखने में मज़ा आएगा। एंड ही विल ऑल्सो हैव रफीनिया एंड विनी, तो वो फैक्टर भी होगा। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी लोगों से पूछनी है चेल्सी फैन से, जॉओ पेड्रो मिस्ड इट, तो उसके लिए क्या लग रहा है? नहीं, जैसे कि लक्ष्य भाई ने बोला, वी सॉ वन थिंग इन कॉमन, एवरी फैन बेस एंटायर, मतलब जो भी क्लब्स हो, एवरीवन इज रियली हैप्पी फॉर नेमार एंड इवन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। लास्ट एक साल से आई थिंक सो हिज ओनली गोल वाज टू गेट इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड एनी हाउ। ही वांटेड टू प्रूव इट टू एंसेलोटी दैट आई वांट इट, एंड आई थिंक सो ही हैज अर्नड इट। उसने अपने फिजियो के साथ बहुत मेहनत की है। वी सॉ दैट द फर्स्ट गाय ही वेंट एंड सेलिब्रेटेड विद हिज फिजियो। सैंटोस में भी ही वाज ट्राइंग एवरी नाउ एंड देन। ही गॉट इंजर्ड आई थिंक सो राइट बिफोर एंसेलोटी वाज सपोज टू कॉल अप द मार्च स्क्वाड। मार्च में ही डिडंट इवन मेक इट टू द स्क्वाड। प्रिलिमिनरी स्क्वाड में भी काफ़ी डाउट्स थे, बट क्रेडिट्स टू एंसेलोटी कि एंसेलोटी ऑल्सो सॉ दी हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन्स जो भी उसने किया। एंड जैसे कि लक्ष्य भाई ने बोला, अभी वो कितना खेलेगा फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसकी हमें आइडिया नहीं है, बट आई थिंक सो दैट टीम नीडेड हिम ओनली फॉर द एक्सपीरियंस। एंड विनी, रफीनिया, कैसेमीरो, ब्रूनो गुमारेश, कूनिया, ये काफ़ी सारे प्लेयर्स तो है। सो आई थिंक सो हिज प्रेजेंस ओनली इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। I would like to see Brazil being there in their old flares, coming back as one, because the thing is, if you ask any Brazilian at this point of time, do you think that this Brazil team or Neymar will be fit in this? They will not have a perfect answer for this. Basically, are vibes enough, he's saying? वाइब्स तो इनफ नहीं होते हैं, बट बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ अ 7 गेम टूर्नामेंट, मे बी यहाँ पर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे You're a Ronaldo fan without you're a Ronaldo fan. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नेमार को मार्च में ना लेना एंड नेमार को थोड़ा सा डाउन प्ले करना, इट एक्चुअली प्लेड आउट वेरी वेल, बिकॉज अगर आप उसके स्टैट्स उठा के देखो, नेमार स्टार्टेड स्कोरिंग इन मार्च अप्रैल, पोस्ट वंस ही वाज बैक फ्रॉम हिज इंजरी, ही स्टार्टेड स्कोरिंग, यू नो, एंड ही वाज अ लॉट बेटर। तो यहाँ पर बेसिकली एंचेलोटी ने उसके अंदर जो फ्यूल डाला है उस आग में, ताकि भाई तू वापस आ जाए वर्ल्ड कप के लिए एंड बेटर परफॉर्म करे इफ यू प्ले इन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर अगर एक टैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करें, मे और मे नॉट फिट, बट सर्टनली व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव नेमार इन योर टीम? भाई, ही इज नेमार आफ्टर ऑल, द लास्ट ट्रू जोगा बोनीतो। I mean, being honest, we all of us have grown up with the era कि FIFA 12, FIFA 13, Neymar signs, and you're like कि भाई Neymar क्या player है भाई, genuinely like वो nostalgia hit है, वो vibes है, वो that era of football भाई, वो क्या you talking about Neymar only makes you passionate कि भाई I remember Neymar with Brazil he got, and then he got kneed at the back like he with Croatia, that game, you were like, it's just Neymar's here, he's going to finally do it. Nahi hua. That always that bar was there, ki, can he do the World Cup? And now it feels like last year, it's a lovely story being written for everybody, to be honest. 5-time यूरोपा लीग विनर, विला को टॉप 5 में रखा है, प्लेयर्स बेचे गए हैं, उसको प्लेयर्स मिले नहीं हैं। जब भी फाइनली कंपीट कर रहा था, मालन को भी रोमा भेज दिया अजय भाई के पास, अजय भाई तो खुश हो गए वहां से। एंड स्टिल कंपीटिंग इन दिस प्रीमियर लीग, ये इरा में टॉप 5। A day after Arsenal has won the league, Unai Emery has gone and done a 5-time Europa League. It's a big achievement, by the way. Man, that guy deserves so many plaudits, but people just overlook him. आई थिंक इसमें थोड़ा मतलब लोगों के लिए ऑब्वियसली अल्टीमेट प्राइज इज द चैंपियंस लीग। यूरोपा लीग को इतना कोई मतलब सीरियसली लेता नहीं है, या फुटबॉल वर्ल्ड में उतनी रिस्पेक्ट है नहीं। बट आई थिंक सो वी एज फुटबॉल फैंस हु जेन्युइनली वॉच फुटबॉल एंड जिनको फुटबॉल की थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी डीप हद तक नॉलेज है, वी हैव टू सी कि he has taken 5 mid-table teams. कोई भी ऐसी एक सुपरस्टार टीम नहीं थी। वी हैव सीन टीम्स लाइक बार्सिलोना, यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, सब लोग रिसेंट टाइम्स में यूरोपा जाके खेल के आए। 3 in a row लिया है उसने। 3 in a row, and that too with mid-sized teams. Sevilla was struggling, Villarreal was struggling. He won it against Manchester United. अगर आई थिंक सो UEFA सुपर कप भी उसने ऑलमोस्ट बार्सिलोना से ले ही लिया था, तभी भी he was the manager. Aston Villa was also struggling later due to form, but Aston Villa के साथ भी उसने जीत गया। Let's be honest कि Unai Emery का नाम उतना बड़ा नहीं है, ये कोई और करता, कोई थोड़ा
थोड़ा बड़ा मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल आर्टेटा होता या कोई भी होता, क्लॉप कर लेता, बिकॉज इवन क्लॉप हैज प्लेड इन द यूरोपा लीग, तो वी वुड हैव पुट प्रोबेबली मोर रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम. बट आई थिंक सो एवरी फुटबॉल फैन, ऑल ऑफ अस शुड एक्नॉलेज द वर्क दैट ही हैज डन. यार पता है वो क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि ना जब वो चैंपियंस लीग में compete करता था with PSG and with other teams I don't remember. Arsenal. हाँ, He never played with Arsenal. We were not in. We were in Europa Arsenal. and Yes. he managed, but he was not in UCL नहीं था. UCL नहीं था. तो जो चैंपियंस लीग में PSG के साथ था ना, वो 6-1 वाला अगेंस्ट बार्सिलोना हुआ एंड अदर कॉम्पिटिशन, जब वो नॉकआउट हो गया तो हुआ क्या, उसको फिर थोड़ा ऑब्वियसली डाउनग्रेड कर दिया. 5 यूरोपा लीग्स इज फैंटास्टिक, नोबडी हैज डन इट, बट वही द अल्टीमेट प्राइस. द हार्डकोर फैंस वुड लव हिम, वुड नो हिम. उसके बारे में 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनेगी, द मैनेजर हु नोबडी टॉक्ड अबाउट, बट कैजुअल फैंस को कभी नहीं समझ आएगा. फेयर प्ले. टॉकिंग अबाउट अ टीम जो शायद बहुत ही, हमारे 3 आर्सेनल फैंस हैं यहाँ पे, बहुत खुश है. अभी भी रेलेगेट हो सकती है, अभी भी रेलेगेट हो सकती है. अगर जो वेस्ट हैम अपनी गेम जीत ले एंड टॉटनहम हार जाए, टॉटनहम विल स्टे और दे गेट रेलेगेटेड. Genuinely, I think they will stay, and I want them to stay because कहाँ मिलेंगे ऐसे राइवल्स? सिटी को हराने वाले. एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे ऐसे राइवल्स? 6 पॉइंट्स हमको दे दिए, 4 पॉइंट सिटी से ले लिए. बात तो सही बोला वो, बात तो सही बोला. बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म खुद की प्लानिंग है. I believe it's happening. Tottenham are going down. They need to go down. और वेस्ट हैम वर्सेस लीड्स है, तो मैं तो वेस्ट हैम के लिए रूट कर रहा हूँ. आई थिंक सो वी आर नॉट सीइंग टॉटनहम नेक्स्ट ईयर इन द प्रीमियर लीग. और जैसे कि राहुल ने बोला था लास्ट एपिसोड में, इफ दे गो डाउन, आई डोंट थिंक सो विद इन अ सीजन दे आर गोइंग टू कम बैक अप. बट आप बोल रहे हो कि डेफिनेटली टॉटनहम अपना मैच हारेगी और वेस्ट हैम जीतेगी. बार्सिलोना फैंस पता है क्यों चाहते हैं कि वो रेलेगेट हो जाए? क्योंकि इनके 2-3 प्लेयर्स हैं, वैन डे वेन और रोमेरो. अच्छा, yes or no, relegate or no? Not what you wish, you think genuinely. Yes. Why wouldn't you want to bash your opponent when they are at their worst? मतलब अगले सीजन अगर तुम्हें दिखे कि भाई क्या नाम है, व्हाइट हार्ट लेन, उसमें तुम 6-0 जीत रहे हो, wouldn't you want that? Nee, I'll tell you one thing. 22 years we have waited. We won. Now the cherry on top is they get relegated. Bhai sahab, the London streets, bro, all Spurs fans will be shutting their door. They won't be coming out. The stadium will be in tourist spot. I can't wait for that. They anyway have their concerts now. Toxicity because Champions League final के लिए Spurs fans are so salty. They booked all the hotels across the Exactly, stadium. yeah. So they deserve that. Comment section में बता दो, are Tottenham Hotspur going down? Legacy of Neymar Jr. बहुत सारे फेयरवेल्स है फुटबॉल में, हमने जितना ट्राई किया अभी टच अप अपॉन इट, बट मैं बहुत ही ग्रीडी हूँ यहाँ पे. इट इज टाइम फॉर द राइवलरी मैच. फटाक से फिर से रूल बोल देता हूँ. यहाँ पे 4 राउंड होते हैं. 3rd राउंड इज मल्टीपल चॉइस पे यू कैन नॉट स्टील सही किया बाकी राउंड्स में यू गेट 2 पॉइंट, स्टील गलत किया -1. सही जवाब नॉर्मली देने में यू गेट 1 पॉइंट. ईच टीम हैज 3 पासेस. पास बराबर किया 0.5, पास गलत किया देयर आर नो नेगेटिव्स फॉर दैट. ओके, अगेन यू कैन ओनली स्टील ऑन राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 4, नॉट इन मल्टीपल चॉइस. करंटली क्रिएटर्स आगे है 19 पे और फैंस है 17 पे. Are we ready? Yes. Are we ready? Who was the oldest goal scorer or who is the oldest goal scorer in Champions League football? Zlatan Ibrahimovic. The correct answer is Pepe for Porto. But no problem, we warmed up, थोड़ा tough वाला था. You all remain on 0. Nikhil, on to you. Who is the current jersey sponsor for Chelsea? Jersey sponsor. Pass. IFS. सही जवाब. ऑब्वियसली चेल्सी फैन नोज. फाइनली ये पूरे लॉस वाले घाटे में थोड़ा पैसा आ रहा है तो उनको मालूम होगा. दैट इज 1 सक्सेसफुल पास ओवर देयर. दे आर ऑन 0.5 ऑन टू यू टू मेक इट 1 फॉर यू गाइज. जेसी मार्श इज द हेड कोच ऑफ विच नेशनल फुटबॉल टीम? स्टील, कनाडा. Oh, Canada is the right answer. Successful steal. They are now Steal is over. Chalo, done. on 2.5, but steal is over. 1 pass is over. You all have 3 passes left and your steal left. But right now they can make it 3.5. Vichul Maro. Done. Josh, on debut, which English team play their home matches at the Riverside Stadium? Pass. Middlesbrough. Another successful pass. They are on 3 points. 2 passes done, 1 steal done, only 1 pass left, but it is 3 and Shunya. Shunya. 0.
How many UCL finals has Zidane played as a player? Pass. 4. One too many. The right answer is 3. Confident pass ताली वाली लिया but उल्टा पड़ गया, लाल हो गया हाथ यहाँ पे और लाल हो गया चेहरा भी. At the end of round 1 over here, they still remain on 0. You guys can make it 4. Damn. Mourinho has come back to Real Madrid. He's also managed Chelsea 2 times. Along with these 2 clubs, which other club he's managed 2 times? Steel. Wait. He said Steel first. Benfica. सही स्टील कर दिया है. They've got it there. वाह. I told you, Jose fan, man. Just like that, it is 3 and 2. Down to starting with you, Laksh. You can tie it up 3-3. For one match day against Brentford, Man City changed the name of their stadium to Manchester City Stadium. The right answer is the city in the community of Etihad Stadium. Who managed Real Madrid after Zidane? Carlo Ancelotti. Sahi jawab. The fans are on 4 points. The creators are on 2. Karl-Heinz, Gerd Müller and one more player won the Ballon d'Or at Bayern Munich. Who's our third player? Lothar Matthäus. Lothar Matthäus moved to Inter. The right answer is Franz Beckenbauer. Fuck bhai. The Men of Steel is a nickname for which Indian football club? पास. ये लास्ट पास है आपका फैंस. जमशेदपुर FC. सही जवाब. 3 passes right. Steel right. West Ham ऊपर रहे या ना रहे, clutch is on top. Yay. What is the jersey number of João Cancelo at Barca currently? What the? आपको पता है? 12. 12 is 10 too many. The right answer is 2. I was confused. I didn't see you. Who is the highest goal scorer across this year's El Clasicos? Rashford. The right answer is Rafinha is the right answer, लेकिन no pass, no steal, no कुछ भी नहीं. Round 3 starting off with you, multiple choice, ठीक है? From these 4 keepers, only from these 4 keepers, who has played the most minutes in La Liga this season? Joan Garcia, Jan Oblak, Thibaut Courtois और Paulo Gazzaniga? Joan Garcia. Paulo Gazzaniga is the right answer. Confidently second गलत पास लिया. Who scored the last goal at the old Camp Nou? मतलब Camp Nou टूटने से पहले last goal किसने मारा? Pedri, Gavi, Lewandowski या Ansu Fati? Lewandowski. Gavi is the right answer. Which club did Real Madrid sign Isco from? Valencia, Sevilla, Malaga, Real Betis. Malaga. Malaga is the right answer. Points on the table. Who is Arsenal's highest goal scorer? Thierry Henry, Ian Wright, Cliff Bastion or Robin Van Persie? Ian Wright. It's Henry. It's Thierry Henry. He literally broke. चलेगा हारो. Which of these is not an actual football club name? Try not to laugh a lot. You have to go very quickly because I can't stop my own laughter right now. FC Santa Claus, Deportivo Banco, Club Always Ready, Tart FC. Which of these is not an actual club name? Club Always Ready. Tart FC is the right answer. I thought like some random club in like. Which player has scored the most goals in one single edition of the FIFA World Cup? Zico, Maradona, Pele or Fontaine? नहीं है पास. Zico, Maradona, Pele or Fontaine? Fontaine, I want to say. So right answer, you got it. Damn! I have been told to do a VAR check.
And there is cheating. There is a nudge from Sahil on Khan. The point has been taken away. And you got a -1 for cheating. The new score is now PGMOL for the win. The score is 3.5 to 3. Now it's back to normal answer and question. Who is the kit sponsor of Mohammedin SC? Nivea is the wrong answer. What's the right answer? The right answer is 656. Nivea. nahi. Which Italian team has played or has made the most appearances in the Champions League? Juve. Juve is the right answer! No cheating this time, no VAR check. They are officially on 4.5 while you guys are on 3. In Mourinho's heavy 5-0 loss in the first El Clasico, which Barcelona player scored a double? पास है ना इनके पास है उसको And they stay in the game just like that. It is not देखो over. उधर देखो भाई उधर. Which club did Peter Schmeichel join after leaving Manchester United? Immediately the next club. Manchester City. Definitely the wrong answer. It is Sporting. सब confused हो जाते हैं. He went after that to. Oh fuck. All right. It is now down to the Arsenal fan. Even though Arsenal have won it, he could still bottle it. Before Barca played Newcastle, or when Barca played Newcastle in the round of 16, who was the top scoring Englishman? Harry Kane or Anthony Gordon? 10, 9. पास खत्म हो गया ना इनका. पास खत्म हो गया. 6, 5, 4, 3, Gordon. 1. That's the right answer. Gordon is the right answer. We are not done yet. Which team has lost the most consecutive finals at Wembley? Fuck. Chelsea. That is the right answer. They won it. The fans have come back. They are clawing up the leaderboard. अभी सिर्फ rivalry room के 2 episode बाकी है. Will they tie it up? Will they go ahead? Will they nail it in the next episode? The creators, we do not know. This was episode 36 of the rivalry room. अगर जो आपने अब तक like नहीं किया तो leave a like, subscribe to the Game on FC, hype the video up. Please ignore the fact that I just abused right now and follow community guidelines. Troll मत करना ज़्यादा हद से ज़्यादा, banter ज़्यादा मत करना. Respect each other as much as you think jersey color जो भी हो, respect थोड़ा दिखाना. Until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game on FC.